Assalamualaikum students, good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Okay students, in the previous lecture we have read about the extracting metal from their ores. Okay, let's open your book. Let's see the answers, questions of answer which I have given you. Few questions I have told you to solve these answers, solve these questions or try to find out the answer of these questions, which is on page number 39, and our topic was extracting metal from their ores. Okay, let's check the answer first. After that we will start our today's topic, that is corrosion. We will see what is corrosion and how we will prevent corrosion. हम corrosion को कैसे रोक सकते हैं और corrosion होती क्या basically. Okay, first let's move towards the answers of these questions. Question number 1 is, what are the two stages in extracting a metal from its ore? ore से metal को extract करने के two stages क्या हैं? Here is the answer on page number 38. Okay, first the metal compound is separated from the rock and other waste material. Next, the metal has to be extracted from the metal compound. Okay, this is the answer of question number 1. Question number 2, explain why it is easier to separate a metal low in reactivity series from its ore. यानी कि वो मेटल जो reactivity series में लो हैं उसे easier क्यों है separate करना, यानी कि उसे separate करना easy क्यों है. Okay, here is the answer. Metals lower in the reactivity series form less stable compounds, क्योंकि उनके compounds less stable होते हैं, so they can be separated from their ores more easily. less stable compound है इसलिए उन्हें ore से ज़्यादा आसानी से separate किया जा सकता है. Okay, number 3 question, describe how aluminium is extracted from bauxite. bauxite से aluminium को कैसे extract किया जा सकता है. ठीक है. Okay, here is the answer. Okay, aluminium ore is called bauxite and impurities are removed from the bauxite, leaving pure aluminum oxide or alumina. The alumina is melted, then an electric current is passed through the hot liquid, pure aluminum is produced. Okay, आप ये heading लास्ट में डालेंगे, extracting aluminum by electrolysis. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है. Okay, name one other metal that you would expect to be extracted by the same method. एक और मेटल का नाम लिखें जो इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. मैग्नीशियम, MAGNESIUM. ओके ओके, वाई इज कार्बन एडेड टू आयरन ऑक्साइड इन द ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन क्यों ऐड किया जाता है? हियर इज द आंसर. कार्बन इज एडेड टू आयरन ऑक्साइड इन अ ब्लास्ट फर्नेस सो दैट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, ताकि उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए, फॉर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेके लिविंग बिहाइंड प्योर आयरन, और पीछे क्या रह जाएगा, प्योर आयरन रह जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोलाइसिस इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम. एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत होती है. वाइल आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड विदाउट इट, और जबकि आयरन को उसके बिना ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, यानी कि उस पर ब्लास्ट फर्नेस में कर लिया जाता है स्मेल्टिंग के प्रोसेस से, जबकि एल्युमिनियम के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस की जरूरत होती है. हियर इज द आंसर. एल्युमिनियम इज़ हाई इन द रिएक्टिव सीरीज. रिएक्टिव सीरीज पर एल्युमिनियम हाई है, टॉप पर मतलब टॉप वाले में है. हाई किससे हाई है, आयरन से हाई है. ठीक है, एंड फॉर्म स्टेबल कंपाउंड और स्टेबल कंपाउंड बनाता है, विच नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्प्लिट दैम, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तोड़ने के लिए. आयरन बीइंग अ मेटल लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज. आयरन वो मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर है. फॉर्म लेस स्टेबल कंपाउंड, और लेस स्टेबल कंपाउंड बनाता है, एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट और मोर इजीली, और आसानी से इसीलिए वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है अपनी ओर से, जबकि एल्युमिनियम आसानी से नहीं होता. एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है. ओके, दिस वर द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 on page number 39. Okay, now
लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। ओके, क्रोजन आप कह सकते हैं आपका जो मेटल है वो क्रोड होता है। आपके जो मेटल है उसके ऊपर वो आपका मेटल रिएक्टिव है। आयरन फॉर एग्जांपल रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है फ़ौरन से। जब उसके साथ कोई भी ऑक्सीजन या वाटर या एसिड उसके साथ इन टच आता है तो वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है फ़ौरन से, तो वो क्रोड होना शुरू कर जाता है। उसकी सरफेस क्या होती है, एरोड होना शुरू। क्रोजन मीन आप सिंपल ये कह लें आपका आयरन क्रोड हो रहा है, लाइक जंग आ रहा है, ठीक है। उस पर जैसे आप अगर लोहे के कोई भी चीज़ है अगर आप उसे नेमी में छोड़ते हैं तो उस पर फ़ौरन से जंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रोजन। मिलियन ऑफ टन्स ऑफ मेटल्स आर यूज एवरी ईयर। मिलियन ऑफ टन ऑफ मेटल इस्तेमाल होता है हर साल फॉर मैनी डिफरेंट जॉब्स, मुख्तलिफ कामों के लिए। बट दे ऑल फेस वन मेजर प्रॉब्लम, लेकिन सबको एक ही बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ क्रोजन, ठीक है। अ मेटल क्रोड्स, एक मेटल क्रोड करता है व्हेन एवर अ केमिकल, जब कभी कोई केमिकल सच एज वाटर, एयर और एसिड अटैक इट्स सरफेस, जब भी वाटर, एयर और एसिड उसके सरफेस पे अटैक करता है या उसके साथ इन टच में आता है। फर्स्ट द मेटल लॉसेज एट शाइनी सरफेस, सबसे पहले मेटल क्या करता है, अपनी शाइनिंग उसकी जो शाइनी सरफेस है वो ख़त्म हो जाती है। देन इट इज़ स्लोली ईटन अवे, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, उसे खाया जाने लगता है एंड वीकन और कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आप देखेंगे जो सरफेस जैसे जंग लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होते हैं, पतली होना स्टार्ट हो जाती है। एक टाइम आता है कि वहाँ सुराख से हो जाते हैं, ठीक है, ईटन अवे। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, मेटल्स जो हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ पर टॉप पर हैं, कैन नॉट बी यूज, वो मेटल जो टॉप ऑफ द सीरीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे, कैन नॉट बी यूज टू मेक थिंग्स, वो चीज़ें बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। बिकॉज क्योंकि दे आर क्विकली क्रोडेड बाय एयर एंड वाटर, उसे पानी और हवा जल्दी से क्रोड कर देती है। क्रोजन इज़ इवन अ प्रॉब्लम फॉर मेटल्स लोअर इन सीरीज़, क्रोजन हत्ता के उन मेटल्स का भी प्रॉब्लम है जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिनका जो लो है। क्रोजन ऑफ कार्स एंड ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील विच इज़ मेनली आयरन, यानी कि कार और ब्रिजेस के जो स्टील से बने होते हैं जो कि मेनली आयरन है, कैन वीकन दैम, उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं, एंड मेक दैम डेंजरस टू यूज़, और उसे इस्तेमाल के लिए डेंजरस बना सकते हैं, ख़तरनाक बना देते हैं। क्यों, ब्रिज है, ब्रिज पे अगर क्रोड होगा आयरन उसका तो ब्रिज क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो उस पर आप अगर हैवी ड्यूटी बाइक्स, कार्स, ट्रक्स वगैरह चलाएंगे तो आपका ब्रिज कोलैप्स होने का खतरा है, ठीक है। और इसी तरह कार है तो उसके आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो आप खुद अगर एक्सीडेंट होता है तो वो जल्दी से आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, जल्दी से डैमेज होकर। ओके, रिप्लेसिंग क्रोडेड मेटल ऑब्जेक्ट्स कॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर, यानी कि क्रोडेड मेटल ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करने में आपका हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं उस पर। ओके, प्रिवेंटिंग, इसका एक तरीका है कि हम क्रोजन को प्रिवेंट करें। हम क्रोजन को कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रोजन होने से कैसे रोका जा सकता है। कोटिंग विद पेंट और ग्रीस प्रिवेंट एयर फ्रॉम रिएक्टिंग द मेटल, जब आप मेटल को कोट कर देते हो पेंट या ग्रीस के साथ तो एयर उसके साथ डायरेक्ट इन टच में नहीं आती, जिसकी वजह से मेटल का रिएक्शन एयर के साथ नहीं होता। एयर को रोकता है मेटल तक पहुंचने से। लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्रिजेस एंड मोटर व्हीकल्स, जैसे कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स बड़ी चीज़ें जैसे कि ब्रिजेस हो गए, आपके पुल हो गए, और आपके मोटर व्हीकल्स हो गए, आपकी गाड़ियाँ वगैरह, ट्रक्स वगैरह, वो सारे मोटर व्हीकल्स में आते हैं। कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पेंट, उन्हें पेंट करके महफूज किया जाता है। द पेंट डेट आर यूज ऑफन कंटेन लेड और जिंक, जो पेंट किया जाता है उसमें अक्सर लेड और जिंक मौजूद होता है। बिकॉज दिस मेटल आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि लेड एंड जिंक लेस रिएक्टिव है। सो पेंट आपका क्रोजन को रोकता है क्योंकि उसमें लेड एंड जिंक है। सम प्रोटेक्टिव कोटिंग कैन बी पुट ऑन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और सब टाइम ऐसा होता है प्रोटेक्टिव कोटिंग यानी कि एक लेयर चढ़ा दी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज टू कोट कैंस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कोट करने के लिए कैंस को, दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड, जो फूड को स्टोर करने के लिए कैंस यूज़ होते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए क्या किया जाता है, कोट किया जाता है। द स्टील कैंस आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ टिन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए क्या किया जाता है, स्टील के कैंस पर किसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है, टिन की, ठीक है, टिन मेटल है।
टिन इज़ यूज, टिन को इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, इसमें जहरीला मवाद नहीं पाया जाता है, एंड लेस रिएक्टिव और उसकी रिएक्टिविटी कम है दैन द आयरन इन द स्टील एज़ कम्पेयर टू स्टील में आयरन से। ठीक है, ओके। आप देखें आप क्या करते हैं, ऑयलिंग अ बाइसाइकिल चेन रेगुलरली स्टॉप इट बिकम रस्टी एंड कीप इट मूविंग फ्रीली। आप अपनी चेन को, बाइसाइकिल की चेन को अगर रेगुलरली ऑयलिंग करते रहेंगे, ऑयल क्या होगा, एक फॉर्म ऑफ कोट, ऑयल और ग्रीस, ठीक है, तो वो आपकी जो चेन है, बाइसाइकिल चेन है, वो रस्टी नहीं होगी, उस पर जंग नहीं लगेगा, यानी कि उसमें क्रोजन का प्रोसेस रुक जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या एक और आएगा कि आपकी चेन फ्रीली मूव करेगी। ओके, टर्न द पेज। नेक्स्ट, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, बाइसाइकिल के हैंडल बार्स, स्टेप्स एंड केटल्स आर आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम, उस पर क्रोमियम की कवरिंग चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस है, यानी कि उसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। स्टील डस्टबिन्स आर corrugated steel roof panels are galvanized by immersing them in molten zinc, यानी कि स्टील के डस्टबिन और स्टील रूफ पैनल्स जो हैं उन्हें क्या किया जाता है, ग्लैविनाइज किया जाता है, यानी कि उनको मोल्टन जिंक में डिप करके उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है। वंस अगेन, एक बार फिर, बिकॉज जिंक इज़ लोअर डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में उसका जो ग्रेड है वो लो है, इसलिए देन आयरन के मुकाबले में इट इज़ लेस लाइकली टू क्रेड, इसलिए वो कम क्रोड होता है। A more reactive metal can protect a less reactive metal in a process called sacrificial protection। जो more reactive metal है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं less reactive metal को, किस प्रोसेस के थ्रू, sacrificial protection के प्रोसेस के थ्रू। ओके, प्लेट्स ऑफ reactive metals, जो reactive metals हैं उनकी प्लेट्स सच एज मैग्नीशियम आर sacrificed, उसको sacrifice किया जाता है टू सेव मेटल्स सच एज आयरन और स्टील, उन मेटल्स जो लेस reactive metals हैं उनको सेव करने के लिए क्या किया जाता है, फ्रॉम क्रोडिंग से सेव, किससे सेव करेंगे, अंडरस्टूड क्रोडिंग से। शिप्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस वे, शिप्स को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। द इलस्ट्रेशन शो मैग्नीशियम अटैच्ड टू अ शिप्स हल, मैग्नीशियम की प्लेट्स को अटैच कर दिया जाता है शिप्स के हल से, बिकॉज द हल इज़ ऑलवेज अंडर वाटर, क्योंकि हल जो है आपका हमेशा अंडर वाटर रहता है। इट कैन नॉट बी पेंटेड रेगुलरली, इसे रेगुलरली पेंट नहीं किया जा सकता। व्हेन द मैग्नीशियम हैज़ क्रोडेड, जब मैग्नीशियम क्रोड हो जाता है, इट इज़ रिप्लेस, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। अंडरग्राउंड गैस एंड वाटर पाइप्स कैन बी प्रोटेक्टेड इन द सेम वे, अंडरग्राउंड जो पाइप हैं वाटर के और गैस के, उसे इसी तरह से सेव किया गया। हियर इज़ द ship hull, magnesium plates are attached, when these are corroded they are replaced। और मैग्नीशियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है तो आपकी शिप से ज़्यादा पहले ये क्रोड हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी प्लेट्स लगा दी जाती हैं। जब ये आपका क्रोड हो जाता है तो इसे हटा दी जाती है और इसे रिप्लेस कर दी जाती है, तो इससे क्या होगा, आपका आयरन और आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो सेफ रह जाता है, ठीक है। ओके, नाउ बीटिंग क्रोजन यूजिंग अलॉय, क्रोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है यूजिंग अलॉय का इस्तेमाल करके आप क्रोजन को बीट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्रोजन होने से रोक सकते हैं। सम क्रोजन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग अनरिएक्टिव मेटल्स, कुछ जो प्रॉब्लम है क्रोजन की वो सॉल्व की जा सकती हैं अनरिएक्टिव मेटल इस्तेमाल करके, बट नॉट ऑल, लेकिन सब अनरिएक्टिव मेटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, जो वो आपके अनरिएक्टिव मेटल हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, एंड क्वाइट ऑफन दे आर नॉट सूटेबल फॉर द जॉब, और अक्सर ऐसा होता है कि वो जो काम होता है उसके लिए सूटेबल नहीं होते। इवन इफ देयर वॉज अ लॉट ऑफ चीप प्लाटिनियम अराउंड, अगरचे ऐसा भी हो कि बहुत सारा चीप प्लाटिनियम, सस्ता प्लाटिनियम मिल जाए आपको, इट वुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग कार, लेकिन वो फिर भी एक कार को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? इट इज़ टू सॉफ्ट एंड वीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड वीक है। सो कार्स आपकी सॉफ्ट एंड वीक मटेरियल से तो बन नहीं सकती। सो आप देखें, होने के बावजूद अगरचे होगा भी तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सूटेबल नहीं है जॉब के लिए। मोस्ट क्रोजन प्रॉब्लम्स आर सॉल्व यूजिंग मेटल अलॉयज़, ज़्यादातर क्रोजन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है मेटल के अलॉय। अलॉय होता क्या है? एन अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर एक मिक्सचर बना लिया, यानी कि दोनों को मेल्ट करके मिक्स कर दिया जाता है, उसका मिक्सचर बना लिया जाता है, उसको अलॉय कहा जाता है। अलॉय आर यूजुअली मेड बाय मेल्टिंग मेटल्स, मैंने जैसे बताया अलॉय अक्सर किससे बनता है? मेल्टिंग मेटल्स टुगेदर, यानी कि मेटल्स को एक साथ गर्म करके देन अलॉइंग द
मोल्टन मिक्सचर टू कूल एंड हार्डन, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है ताकि जो मोल्टन मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए और सख्त हो जाए। मिक्सिंग डिफरेंट मेटल कैन प्रोड्यूस अलॉयज़, डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके क्या बनता है, अलॉय बनता है। विच बिहेव इन डिफरेंट वे, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है, यानी कि उसका जो बिहेव होता है वो डिफरेंट हो जाता है। मैनी अलॉयज़ आर डिज़ाइन टू बी रेजिस्टेंट टू क्रोजन, बहुत सारे अलॉय इसलिए बनाए गए हैं कि वो क्रोजन को रेजिस्ट करें, यानी कि आपके मेटल के डिग्रेडेशन को रोकें। स्टील इज़ अ कॉमनली यूज्ड अलॉय, स्टील जो है वो कॉमनली यूज अलॉय है। एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टील अलॉयज़, और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टील के अलॉय बनाए जाते हैं। द मेन मेटल इन स्टील इज़ आयरन, स्टील में जो मेन मेटल है वो आयरन है। आयरन रस्ट ईजीली, आयरन आसानी से रस्टी हो जाता है, जंग लग जाता है उसे। एंड इज़ क्वाइट ब्रिटल, और काफ़ी सख्त भी होता है। अलाइंग द आयरन विद मेटल्स सच एज निकल एंड क्रोमियम प्रोड्यूस स्टील। बेटा स्टील आपका नेचुरल नहीं है, स्टील आपका अलॉय है। अलॉय किस चीज़ का है, आयरन लिया जाता है बल्क अमाउंट में, उसके साथ साथ उसमें क्या ऐड किया जाता है, निकल और क्रोमियम। इन तीनों को मेल्ट करके जो नई चीज़ बनती है वो स्टील है। उसको ठंडा मतलब मेल्ट किया जाता है, फिर उस मोल्टन मिक्सचर को कूल एंड हार्ड किया जाता है तो वो स्टील बन जाता है। प्रोड्यूस स्टील विच आर स्ट्रॉन्गर एंड रस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि आपका स्टील स्ट्रॉन्गर भी है। जो स्टील हमारे पास प्रोड्यूस होगा, जो मिक्सचर प्रोड्यूस हो रहा है इन तीनों चीज़ों का, किसका, आयरन, क्रोमियम एंड निकल का, वो क्या है, स्टील प्रोड्यूस करेगा, जो कि स्ट्रॉन्गर भी है और उसे रस्ट रेजिस्टेंस भी है, यानी कि उसे जंग नहीं लगता। द फोटोग्राफ शोज सम क्रोजन रेजिस्टेंस अलॉय एंड सम ऑफ द जॉब्स दे डू, यानी कि फोटोग्राफ्स में कुछ क्रोजन रेजिस्टेंस अलॉयज़ हैं और उस जो क्या जॉब करते हैं उनका जॉब भी बताया, उनका काम भी बताया गया। देखिए ड्यूरेलियम एल्युमिनियम है, इसमें 95% उसमें कॉपर है। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है हार्ड स्ट्रॉन्ग, यूज इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होता है ड्यूरेलियम। ठीक है, किससे बना है मिलकर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। नाउ सोल्डर, सोल्डर में क्या है, लेड है, टिन है, इन दोनों को मेल्ट करके एट लो टेम्परेचर पे मेल्ट किया गया है। मेल्ट एट लो टेम्परेचर, ये क्या करती है, लो टेम्परेचर में मेल्ट हो जाती है। देन सेट हार्ड, उसके बाद सख्त हो जाती है। यूज टू मेक मेटल कनेक्शन, ये मेटल कनेक्शन को लगाने में काम आती है। ओके, मोनल निकल एंड कॉपर है, इन दोनों का मिक्सचर है। स्ट्रॉन्ग अनअफेक्टेड बाय वाट, सी वाटर यूज इन शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है, यह सी वाटर इस पर अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद आ गया स्टेनलेस स्टील, यानी कि इस पर जंग ना लगने वाला स्टील। आयरन है, 85% क्रोमियम है, और ठीक है, इन दोनों को मेल्ट करके आपका स्टेनलेस स्टील बनाया गया। स्ट्रॉन्ग है, क्रोजन रेजिस्टेंट है, यूज टू मेक कटलरी एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी और कटलरी को बनाने में काम आता है। ओके, हियर इज क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 41। क्वेश्चन है कुछ आपके टेस्ट योरसेल्फ के छोटे छोटे। व्हाट इज़ एन अलॉय, अलॉय क्या है, हाउ आर अलॉय मेड, अलॉय कैसे बनता है, आपने अभी रीडिंग में पढ़ा अलॉय क्या है और कैसे बनता है। इन वर्ड पेज स्टील बेटर देन ऑयल, किस तरह, स्टील बेटर है आयरन से, ब्रॉन्ज बेटर है कॉपर से, ड्यूरेलियम बेटर है एल्युमिनियम से। वाई इज़ मोनल गुड फॉर शिपिंग, मोनल गुड क्यों है शिपिंग के लिए, अभी आपने पढ़ा है। और सोल्डर यूज फॉर इलेक्ट्रिक वर्क क्यों इस्तेमाल होती है। ओके, विच अलॉय वुड बी यूज़फुल फॉर जॉइनिंग कॉपर पाइप्स टुगेदर, कौन सा अलॉय यूज़फुल रहेगा कॉपर पाइप्स को जोड़ने के लिए, मेकिंग कटलरी बनाने के लिए कौन सा अलॉय यूज़फुल है, और मेकिंग स्टैचूज बनाने के लिए कौन सा अलॉय यूज़फुल है। हेयर इज ब्रॉन्ज। ओके, कॉपर एंड टिन स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, कॉपर से स्ट्रॉन्गर है ब्रॉन्ज, और यूज टू मेक स्टैचू एंड कॉइन्स और स्टैचू बनाने का काम आता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया, हमारे पास जस्ट एक्सरसाइजेज बची हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।